All right, people. Hi. So, we have yet another very interesting concept from electrostatics that we will try to cover today. Now, this particular series of questions I'll be taking from Erodov, but the concept, of course, is more general than that, and we'll try to generalize this idea into various situations as we go along. But then try to understand this thing, because the ideas used here are actually used quite a bit. So we are basically starting from question 3.16 of Erodov. All right. So let's try that first, and then as we go along, we'll see what other things can be concluded out of it. So what the question says is, of course, we'll not be spending too much time reading the question. Basically, the situation is this, that this is let's say this is a hollow sphere. Now this hollow sphere has a radius r. Now what he says is, let us imagine there is a constant vector A vector. Now this vector could be anywhere. Let's say that. So what he says is that this hollow sphere has a non-uniform surface charge density, and that sigma, the function is given as A vector dot with r vector, where r vector is the position vector of any point with respect to the center of the sphere. So this is the center of the sphere, this is the point P. So there is a sphere which has a surface charge density given by this function. Now we have to find the electric field at the center. Let's first of all start with that. So let us take a general point P on the sphere such that r vector makes an angle theta with A vector. Now it is quite clear that magnitude of r vector will be equal to r, same everywhere, because it's a hollow sphere and we are talking about the surface only, and the distance from the center would be a constant. So if I open it up, I would have sigma equal to A into r into cos theta. Now as you can see, A is the magnitude of this vector, and this vector is given to be a constant, right? So A is a constant, capital R is a constant. So let's call this A into capital R as sigma naught cos theta. So sigma is a function of theta. Now the same distribution you can have on a ring as well. In fact, ring वाला question ये हमने किया भी था. तो पर ये रिंग नहीं है, ये क्या है, स्फीयर है. तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले इसके वी हैव टू टेक द डिफरेंशियल एलिमेंट्स, और हमें सेंटर पर क्या चाहिए, फील्ड चाहिए. तो क्या करें, तो हम किसी भी थीटा पे जाते हैं और हम डी थीटा का एक एलिमेंट ले लेते हैं, और ये एलिमेंट वंस अगेन किस फॉर्म में है, ये एलिमेंट मेरा एक रिंग की फॉर्म में है. सो दिस इज द रिंग. ठीक है. अब आप एक बात ध्यान रखनी है कि इस पूरे रिंग पर एवरीवेयर थीटा इज अ कांस्टेंट. Alright, so you can just imagine this in 3D. Theta is a constant everywhere, which means sigma will be constant at least on this ring. So at least this differential ring can be assumed to be uniformly charged. Now this point C, where we want to find the electric field, basically lies on the axis of this ring. This distance would be r cos theta, and this radius of this ring would be r sin theta. So the charge on the differential ring will be sigma into its area. So sigma is of course sigma naught cos theta, and the area would be 2 pi r. R is the radius, which is r sin theta. So 2 pi r is the length. R d theta is this width, right? This width is r d theta. So length into width becomes the area, and this becomes your dq. So let me just open it up. This becomes 2 pi r square sigma naught into sin theta cos theta d theta. This is your dq. Now since this dq is on a ring and I have to find the electric field at C, so we are going to use the formula for electric field on the axis of a ring. That was k q x. X is the distance from the point from the center of the ring, that is r cos theta, divided by kqx upon r square plus x square. So people, r square sin square theta plus r square cos square theta.
becomes capital R square and its whole cube becomes R cube. Right? This is the formula on the axis of a ring. This is the one which I have used here. तो ठीक है, कुछ वैल्यूज पुट कर देते हैं. K is 1 upon 4 pi epsilon naught. dq is 2 pi r square sigma naught sine theta cos theta d theta into r cos theta and divide by r cube. So we can see that quite a few things are getting cancelled out. Okay, this goes away. I'm left with sigma naught by 2 epsilon naught into sine theta cos square theta d theta. This is the differential electric field at C, which means the total electric field at C. Now remember that this electric field is going to be like this, all right? Because theta that I've taken is acute, so cos theta is positive, so sigma is positive, so it's a positively charged ring. Field is going to be away from it, and it's going to be a unidirectional electric field for all the elements that I've chosen. So the next point would be to find the electric field. So this would be the integral. So sigma naught out to epsilon naught out. I've got sine theta into cos square theta d theta as theta goes from 0 to pi. Everybody, theta 0 means you are here, and then theta keeps on increasing. You start piling up all the rings, and as theta becomes pi, you have, basically completed the entire sphere. So 0 to pi. Now, how do I do this? So of course, I'll take cos theta as z. So minus sine theta d theta then becomes dz. Okay. So this cos minus sine theta d theta becomes dz, and cos square theta becomes z square, and limits, when you put theta 0, cos theta becomes 1. When you put theta pi, cos theta becomes minus 1. What do you get? Sigma naught by 2 epsilon naught. So z square integral is z cube by 3, और माइनस के लिए आप लिमिट्स को एक्सचेंज कर दीजिए. Finally, when you put z1, you get 1 by 3 minus 1 by 3 becomes 2 by 3, and you have a beautiful result, sigma naught by 3 epsilon naught at the center. That's the electric field at the center of this sphere. Good enough? No big deal, just basic calculus. Theta d theta ring field integrate, that's it. And as you can see, that this net electric field is going to be in this particular diagram towards left, and in vector form that is opposite to the direction of A vector. So in vector form you can always write, by the way, what was sigma naught? I mean, sigma naught was not given in the question. Sigma naught I assumed A into R. So the final answer becomes A into R by 3 epsilon naught, but that is the electric field in magnitude. Since it's opposite to the direction of A vector, you can always write minus R by 3 epsilon naught times A vector. That's opposite to A vector. Cool enough. This is the electric field at the center of this sphere. But this was basically your concept building question. This is not where we are, not the final conclusion. This was just the build up. अब वो और आगे चलता है. ये क्वेश्चन तो चलो हो गया है ना, इंटीग्रेशन से कोई खास बात नहीं थी. अब थोड़ा सा और आगे चलता है. And in fact, I would like you to remember this formula, commit this thing to memory because it's going to be used later on. Now, in the next question, that would be your 3 I guess, 1-7. He already gave you sigma naught cos theta. It's the same question. But this time he went a little bit further. This time he said that you prove that the electric field, which was sigma naught by 3 epsilon naught, which we have just proven, by the way, says that prove that this electric field is not just at the center of the sphere, but actually everywhere inside. So he says that everywhere inside the sphere, prove that electric field is uniform. Now people,
if you have a sphere which is charged like this, which basically is this sphere only, and if somebody comes up to you and asks you to find electric field, say here, you'll be beat. मतलब सेंटर पे तो हम लोग ने ठीक है इंटीग्रेशन की, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, बट एनीवेयर अदर देन सेंटर इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. तो इसका हमारे पास अब एक वे आउट है. अब वो वे आउट ये है कि आपसे बेसिकली कहा यह गया है दैट प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड is uniform everywhere inside. The first thing which strikes us is a cavity, because we already know that electric field inside a spherical cavity is a constant everywhere inside the cavity. तो एक काम करते हैं, हम एक डेरिवेशन करते हैं. Imagine this and this. Again, I'm building it up. Let's assume there are two spheres, solid spheres, okay, non-conducting, which means they have volume charge. But there's a problem here. The problem is that one of them is positively charged, say plus rho, one of them is negatively charged, say minus rho. They are overlapping with each other, and it's a 3D sphere, mind it. They are overlapping with each other, which means that in the overlapping region, plus rho and minus rho gets cancelled, and you have kind of a electrostatic cavity here. So when I say electrostatic cavity, what I mean is that there might be mass present here, but there is no charge here. Now this is center C1, this is center C2, and C1, C2 vector is, say, A vector. Good. Now, if somebody asks me, find the electric field anywhere inside this cavity part, let's say at point P, this is the point P, find the electric field. What will I do? I'll say, यार एक काम कर, दोनों की इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस को ले लो. तो हम कहेंगे वंस अगेन ये मत मानो कि ये कैविटी है, उल्टा आप इसे दो स्फीयर्स की सुपरपोजिशन मान लो. एक्चुअली देखा जाए तो टेक्निकली इन दोनों की सुपरपोजिशन ही है ये, पर हमने बोला ठीक है मान लेते हैं. सो क्या इमेजिन करो कि एक पूरा रो है, ये पूरा प्लस रो और ये है माइनस रो. ठीक है, अब पॉइंट पी यहां है और इसके लिए पॉइंट पी यहां है. ये है सेंटर C1, ये है सेंटर C2. So this plus this equal to this. Let this vector be R1 vector. Let this vector be R2 vector. So if I have to find the electric field at P, I'll say it will be due to plus rho and it will be due to minus rho. This is basic principle of superposition. अब अच्छी बात क्या है कि पॉइंट P पहले स्फीयर के भी अंदर है, दूसरे स्फीयर के भी अंदर है, एंड बोथ ऑफ दीज स्फीयर्स आर इंडिविजुअली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. और ये फॉर्मूला हमें पहले ही बताया कि एक जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होता है रो वाला है ना, हैविंग अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आता है दैट इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर वेक्टर एंड रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट times r vector, and we have to put charge with proper sign, so we'll be putting rho with proper sign as well. So electric field at P then becomes kitna, rho by 3 epsilon naught times r1 vector minus r2 vector. People, this is rho by 3 epsilon naught. Now have a look at this. This is r1 vector, this is r2 vector, so minus r2 will be down and r1 minus r2 will basically be C1 C2 vector, which is equal to A vector. And the beauty is this is what? This is uniform. तो अगर आपके पास कभी भी ऐसे दो ओवरलैपिंग स्फीयर्स हों, एक में डेंसिटी प्लस रो है और एक में डेंसिटी माइनस रो है, तो पक्की बात है इनके अंदर भी जो ओवरलैपिंग रीजन है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म होती है और वो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A vector होती है. Now I want you to remember this formula as well. Electric field in the cavity region. अब सुनो next point.
अब ऐसा है यार कि कई बार ऐसा होता है कि हमें 3 डायमेंशनल चार्ज डेंसिटी को 2 डायमेंशनल चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है और 2 डायमेंशनल चार्ज डेंसिटी को 1 डायमेंशनल चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। और इसका एक सिंपल सा लॉजिक होता है। इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने ये एक इनफाइनाइट थिक शीट की थी, राइट ऑन। अब बेटा इस शीट की जो थिकनेस थी वो 2T थी और इसमें जो डेंसिटी थी वो रो थी और हमने बाहर इसकी जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी विच बेसिकली केम आउट टू बी यूनिफॉर्म। रिमेंबर, दिस इज इनफाइनाइट ऊपर एंड इनफाइनाइट नीचे, इनफाइनाइट बाहर और इनफाइनाइट अंदर। अब ना मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ऐसे सोचिए कि अगर हम इस शीट पे कोई भी एक इमेजिनरी एरिया कैपिटल ए लेते हैं और उसको पूरा अंदर तक ट्रांसलेट कर देते हैं दूसरे फेस तक। ध्यान से सुनना, कोई बोले कि बेटा जी इस पूरे वॉल्यूम में चार्ज कितना है, आप कहोगे एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी चार्ज। अब अगर कोई ये बोले कि तू इस शीट को एक सिंगल शीट से रिप्लेस कर दे, एक सिंगल शीट से रिप्लेस कर दे, तो उस सिंगल शीट की कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा क्या होगी? तो हम कहेंगे यार डेफिनेशन क्या होती है सिग्मा की, होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जो सिग्मा आएगा ना वो आएगा चार्ज पर यूनिट एरिया और वो कितना हो जाएगा रो इंटू 2D। गाइज दिस बिकम्स द कॉरस्पॉन्डिंग 2D डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ अ 3D डेंसिटी। तो आज के बाद आपने एक बात याद रखनी है, और ये इस केस में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हर एक शीट को अगर आप इस पूरी थिक शीट को थिन 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 शीट्स में तोड़ देते हो ना, तो हर एक थिन शीट की अपनी फील्ड भी यूनिफॉर्म आती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ओवरऑल जो शीट आएगी उसकी भी यूनिफॉर्म आनी पड़ेगी, तो हम इस 3D को 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के बाद मेरे को क्या समझ आया कि जो रो है वो तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, लेकिन अगर मेरे को इस रो को, मान लो ये वाला जो प्लेन है शीट का, ये अगर XY प्लेन है, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि डेंसिटी को, रो को अगर Z डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा XY प्लेन का आ जाता है। 3 डायमेंशनल डेंसिटी into 1D distance is equal to 2-dimensional charge density. Similarly, 2-dimensional charge density multiplied by 1 dimension gives you 1D charge density perpendicular to this dimension. ये भी अभी आएगा थोड़ी देर में। फिर आपने क्या बोला, अच्छा बेटा ये सिग्मा है, तो अगर मैं इस सिग्मा से इसको रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? याद है एक इनफाइनाइट शीट की फील्ड क्या होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को यहां से पुट कर दो, आंसर आ जाएगा रो इंटू टी बाई एप्सिलॉन नॉट। और चेक कर लें इंटीग्रेशन से भी यही आता है, गॉस लॉ से भी यही आता है। ठीक है जी, तो याद क्या रखा? 3D इंटू 1D इक्वल टू 2D, 3D इंटू 1D इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग 2D। अब मैं मुद्दे पे आता हूं, ये सब बेस था आपका। अब आप पता है क्या इमेजिन कीजिए एवरीवन, ये इमेजिन कीजिए कि आपके पास 2 स्फीयर्स हैं। एक स्फीयर जिस पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, दूसरा स्फीयर जिस पर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, और इन दोनों का रेडियस बिल्कुल एक जैसा है। माइंड में इमेजिन करना है,
कि जी एक पर डेंसिटी है प्लस रो और एक पर डेंसिटी है माइनस रो, ओवरलैपिंग है, तो जाहिर सी बात है प्लस रो और माइनस रो एक दूसरे को खा जाएंगे पकड़ के। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ चार्ज इस पर जीरो चार्ज है। अब वो कहता है कि इमेजिन करो इनमें से एक स्फीयर को अगर बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया जाए, करें, एक पे प्लस रो है एक पे माइनस रो है, कहता अगर इनमें से किसी एक स्फीयर को हल्का सा लेफ्ट में डिस्प्लेस कर दिया जाए ऐसे, बहुत मजेदार है यार ये। अब पता क्या होएगा, अब ये है सेंटर एक स्फीयर का और एक सेंटर थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, हल्का सा, बिल्कुल, कितना, मान लो d। अब एक पे है प्लस रो, मान लो जो ये वाला है ना इस पे है प्लस रो और जो ये वाला है इस पे है माइनस रो, तो बेटा जहां जहां प्लस और माइनस ओवरलैप होंगे इस पूरे मेजर रीजन में, यहां तो कोई चार्ज रहेगा नहीं। लेकिन हुआ क्या, माइनस को आपने लेफ्ट में खिसका दिया तो यहां हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि माइनस वाले को आपने थोड़ा सा खिसका दिया है तो वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। तो यहां बचेगा कुछ पॉजिटिव चार्ज और यहां आ जाएगा बिल्कुल सिमेट्रिकली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई नहीं, अब यहां देखना सब लोग। अब मान लीजिए इस लाइन से सीसी डैश से अगर मैं कोई भी एक थीटा लेता हूं, रिमेंबर सीसी डैश अप्रोचेस जीरो, अगर मैं कोई भी एक थीटा लेता हूं और अब मैं एक नया फिगर इमेजिन करता हूं, थोड़ा सा यार देखो कॉन्सेप्ट एडवांस्ड है, कोई खास बात नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लो हो जाएगा। अब बेटा ये पॉइंट है, आपने उस स्फीयर को लेफ्ट में डिस्प्लेस किया है और लेफ्ट में कितना डिस्प्लेस किया है, x, तो आप इस डिस्टेंस को x मान लीजिए, ये डिस्टेंस जो है ना ये है x, ये है सेंटर, यहां से ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, और ये एंगल कितना था बेटा, थीटा था। आपको पता है ये सेंटर से ये ज्वाइन किया हुआ परपेंडिकुलर ही होता है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो गाइस ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा, ये एंगल ऑलमोस्ट कितना आएगा, 90 डिग्रीज। पता है ये कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, ये डिस्टेंस आ जाएगा x cos थीटा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, ये x cos थीटा आ जाएगा। पता है कौन सा डिस्टेंस है, दिखाऊं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये छोटा सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस x cos थीटा। मतलब कहने का पता है क्या है कि अगर मैं इसको थोड़ा एग्जैजरेट कर दूं फिगर को, एक ऐसे, दूसरा बिल्कुल ओवरलैपिंग था जी भाई साहब, एकदम ओवरलैपिंग, पर अब आप क्या करो, जान के इसको काफी ज्यादा खिसका दो, इतना है नहीं पर समझने के लिए, तो खुद सोचो ना यार, आपको इतनी बात नहीं दिख रही है क्या कि यहां जो इस चार्ज की थिकनेस है वो पूरी की पूरी डी है, लेकिन ये परपेंडिकुलर थिकनेस कम होती जा रही है। तो किसी भी थीटा पे मैंने क्या प्रूव कर दिया, किसी भी एंगुलर पोजीशन थीटा पर जो ये थिकनेस है वो है x cos थीटा, और अब कहानी खत्म पीपल। ये क्या है, थिकनेस है, और मैंने आपको अभी क्या कहा था, मैंने कि 3D डेंसिटी into 1D thickness gives you corresponding 2D डेंसिटी। तो इसका मतलब कि जो ये एक स्फीयर को आपने हल्का सा डिस्प्लेस किया है ना, तो जो ये वॉल्यूम में चार्ज आया है, आप इसको कॉरस्पॉन्डिंग क्या मान सकते हैं पता है, आप इसे कॉरस्पॉन्डिंग ये मान सकते हैं कि एक स्फीयर है, हॉलो है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस हॉलो स्फीयर में, मैं इसको थोड़ा बेटर कर दूं, एक मिनट, फर्क सिर्फ इतना है कि इस हॉलो स्फीयर की जो डेंसिटी आने वाली है एट एनी थीटा, सिग्मा क्या आएगा, देखो पीछे दिखा देता हूं मैं, सिग्मा क्या था, रो इंटू लीनियर डायमेंशन। तो यहां देखो सिग्मा क्या होएगा, रो इंटू लीनियर डायमेंशन x cos थीटा। तो
तो एक काम करें, रो क्या है जो इस पे चार्ज था, एक्स क्या है सेंटर की डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीजें फिक्स हैं, ये क्या बन गया सिग्मा नॉट कॉस थीटा, वेयर व्हाट इज सिग्मा नॉट, सिग्मा नॉट इज रो इनटू एक्स। तो मैंने साबित पता है क्या किया है, इस सबका कंक्लूजन क्या है कि सिग्मा नॉट कॉस थीटा कैन बी थॉट ऑफ, जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना सिग्मा नॉट कॉस थीटा, इसको ऐसे सोचा जा सकता है कि जैसे दो स्फीयर्स हैं रो और माइनस रो वाले, और एक को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया। तो बेटा जी अगर ये कर ही दिया तो अब इस पर आ जाए, कहां कहां गई वो डेरिवेशन, कितना यार एक डेरिवेशन, ये देखो ये कि एक रो और एक माइनस रो, अगर ए डिस्प्लेस्ड है तो कैविटी के अंदर हर जगह रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आती है फील्ड, तो यहां भी क्या होएगा, दो स्फीयर्स जो डी डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड है, पता है फील्ड कितनी आएगी, क्या था, रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि रो ए था सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हाट इज रो इनटू डी, रो इनटू डी, ये रो इनटू डी है यार, डी ना, एक्स लिख दिया मैंने इसको, ये बेसिकली डी है, एंड रो इनटू डी इज सिग्मा नॉट। लेकिन अब मजे की चीज ये है कि प्रूफ फाइनली ये हो गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिर्फ सेंटर पे नहीं, इस पूरे कैविटी के रीजन में है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन is sigma naught by 3 epsilon naught everywhere inside. थोड़ा सा देख लो, है थोड़ा सा समझने वाला है, बस ज्यादा कोई खास बात नहीं है। तो अब आपने जो एक काम करना है वो ये करना है कि ये तो हमने साबित कर दिया, और इस ट्रिक को याद रखना, 3 डायमेंशनल डेंसिटी into 1 dimensional distance gives you 2 dimensional equivalent density perpendicular to that one direction. तो अब इतना मैंने कर दिया, इसका बिल्कुल नेक्स्ट एग्जांपल में यानी कि 3.18 में वो इसको एक स्टेप और आगे ले गया। सिर्फ 2 लाइन की कहानी है, अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई तो ठीक है। तो आई गेस दैट इज इट। अब आप लोग कर लो इसको यार, 3.18 भी ट्राई कर लो, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो लाऊंगा तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, और फिर एक और चीज करनी है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो भी। इन द मीन टाइम एंजॉय दिस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।